Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is heat. This chapter is in physics. In the last video lecture, we completed one topic of heat transfer named as conduction. Conduction mostly occurs in solid, liquid and gases, but it is fastest in the solids. As you know that inside the solid, the molecules are tightly packed with each other and it is transferring the heat by colliding and vibrating with each other and transferring from one molecule to another like in a manner. This is known as conduction. Moving to the next, which is convection. Convection means what? Convection means the transfer of heat from higher temperature to lower temperature by the movement of fluid is called convection. Means over here you can see one new term named as fluid. Fluid means what? Fluid means liquid and gases. Liquid and gases को साथ में अगर बोलना हो तो we can use one word named as fluid. So it is written heat is transferring by the movement of either liquid or gas from higher temperature to lower temperature is known as convection. Now definition से इतना clear नहीं हो रहा है. Then let's see about one activity and understand how convection happens. You can see over here that one flask is there and it is set on the tripod, and over here this is the burner. So you can consider that right now the burner is on a off condition, not on condition. And this flask is filled with water. Now what I have to do? I have to take one small tablespoon of potassium permanganate and drop inside the water. And let the potassium permanganate settle down. Now questions are, madam, what is potassium permanganate? Potassium permanganate is a violet color powder. Nowadays it is also comes in a liquid form also. So still if you are not getting, then let me tell you, आपके पेरेंट्स जब इलेक्शन के लिए वोटिंग करने जाते हैं तो एट दैट टाइम उनके इंडेक्स फिंगर पे एक वायलेट कलर का एक छोटा सा लाइन ड्रॉ किया जाता है. वो किससे किया जाता है? वो इससे किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट लिक्विड से. Still if you are not clear, then let me tell you one another example that stamp होते हैं अलग अलग. स्कूल के स्टैम्प्स होते हैं, कॉलेज के स्टैम्प्स होते हैं, मोस्टली वो वायलेट कलर के होते हैं. सो वो क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर लगाया जाता है, उसको केक के फॉर्म में सेट कर देते हैं. उसके ऊपर एक क्लॉथ का कवर लगा देते हैं एंड थोड़ा थोड़ा पानी डालो एंड यू कैन यूज इट एज अ स्टैम्प. नाउ आई होप यू गेट इट. सो दैट इज नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट जो आता है वायलेट कलर का. सो उसको इस पानी में डाल के उसको सेटल डाउन होने देना है. यहाँ नीचे जब बैठ जाए तब हमें बर्नर को स्विच ऑन करना है. सो देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट. आफ्टर दैट यू कैन सी ओवर हियर जैसे ही बर्नर स्टार्ट हुआ, नीचे का सरफेस का पानी जो होता है वो गर्म होना स्टार्ट होगा. ये पानी, नीचे का पानी गर्म होगा इसकी कंपेयर में. So due to that reason what will happen, you can see that ये पानी गर्म होके ऊपर जा रहा है एंड ये जो आपको दिख रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट है. सो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही नीचे का पानी गर्म होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ऊपर के सरफेस के ऊपर आने लगेगा एंड फिर धीरे 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 ये पूरा पानी है वो कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा. सो दैट इज कंसिडर एज अ कन्वेक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या हुआ एग्जैक्टली. कन्वेक्शन मतलब क्या कि भाई इनको इमेजिन करो एज अ पोटेशियम परमैंगनेट और as well water. So whenever we are providing heat, so at that time the bottom surface is getting heated faster compared to the upper one. So नीचे का पानी गर्म होता है एंड गर्म पानी ऊपर की तरफ चला जाता है. तो ये जो जगह है वो खाली ना पड़े इसलिए ऊपर का जो सरफेस का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है. फिर यहाँ पे आके उसको हीट मिलती है तो वो वापस गर्म होता है, फिर वो ऐसे ऊपर जाएगा,
फिर उसकी जगह ठंडा पानी लेगा, फिर वो गर्म होके ऊपर जाएगा, उसकी जगह ठंडा पानी लेगा. सो लाइक दिस वे यू कैन सी दैट एक सर्क्यूलेटरी मोशन है वो हो रहा है इनसाइड द वाटर, एंड दिस इज नोन एज कन्वेक्शन. मीन्स यहाँ ये डायग्राम से अगर समझना हो कि कन्वेक्शन क्या है, so I am speaking the definition and explaining that heat is transferring from higher temperature. नीचे का पानी गर्म था compared to the upper one. So heat is transferring from higher temperature to lower temperature in by the movement of fluids. You can see that गर्म पानी ऊपर जाता है, उसकी जगह ठंडा पानी लेता है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ठंडा हुआ. So you can see that it is movement is been going on inside the water. So that is known as convection. I hope you get it. Next one is to understand that how convection occurs in gases. So for that the best example is nothing but the natural phenomenon named as land breeze and sea breeze. Land breeze समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग sea breeze समझेंगे. और should I say, चलो पहले sea breeze समझा देती हूँ. Sea breeze मतलब क्या कि जो भी एयर होती है वो थ्रू आउट एटमोस्फियर की वजह से थ्रू आउट अर्थ के अराउंड कवर्ड है. So this air is also getting heated and cools down. Okay, so what will happen, the air is present on the surface of the land also as well on the surface of the water also. So दिन के टाइम में क्या होता है, सन होता है, तो सन की वजह से दिन का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है कंपेयर टू द नाइट वन. ओके, सो ड्यू टू दैट रीजन व्हाट विल हैपन कि भाई इसकी वजह से सूरज की गर्मी की वजह से कौन सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे पहले लैंड की वाटर. यू विल से वाटर, आंसर इज रॉन्ग. सबसे जल्दी गर्म होता है वो लैंड होता है. कैसे, अगर वो समझना हो तो वी कैन डू वन एक्टिविटी. 2 बाउल ले लो, एक बाउल के अंदर 100 ग्राम सैंड, रेत, 100 ग्राम सैंड डाल दो और उतनी ही क्वांटिटी में 100 ग्राम पानी दूसरे बाउल में ले लो. अब दोनों के अंदर थर्मोमीटर डाल दो और उसको गैस पे रखो और उसको गर्म करो. एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद स्टोव ऑफ कर लो और पानी का थर्मोमीटर और पानी का टेम्परेचर देखो एंड लैंड रेत वाला टेम्परेचर देखो. यू विल गेट टू नो दैट लैंड गेट हीटेड फास्टर. सो यही चीज रियल लाइफ पे भी होती है कि दिन के टाइम में लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है कंपेयर टू वाटर. सो उसकी वजह से जो भी एयर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड वो कैसी एयर होगी, गर्म हवा होगी, और शुड आई से वार्म एयर होगी. जबकि सी के ऊपर या पानी के ऊपर की जो हवा होगी वो कैसी होगी, कूल होगी. कैसी होगी, कूल. अब एयर का एक नेचर है, गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है. अब मैडम ये कैसे होता है, क्यों होता है, देन लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. आप जब भी मैगी बना रहे होते हो तो मैगी जब बनती है तो उसमें से स्टीम निकलती है. स्टीम ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, ऊपर जाती है ना. क्यों, क्योंकि वो बहुत गर्म है और गर्म हवा के अंदर वजन कम होता है. वो वजन में कैसी होती है, हल्की होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं एंड उसकी वजह से उसका जो वेट है वो कैसा होता है, लाइट होता है. एंड लाइट चीज हमेशा कैसी होती है, हमेशा ऊपर जाती है. ओके, सो दैट्स व्हाई वार्म एयर राइजेस अप. अब कूल एयर, अब एसी हमेशा जब भी फिट करोगे तो ऊपर सीलिंग के ऊपर लगाओगे कि एकदम नीचे टाइल्स के पास लगाओगे. डेफिनेटली यू विल स्पीक मैडम उसको सरफेस के ऊपर मतलब सीलिंग के पास लगाएंगे. क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें से कैसी हवा निकलती है, एकदम कूल एयर निकलती है. और कूल एयर हमेशा देखना वो नीचे आएगी, नीचे की तरफ आती है. स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग देन लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल. जब आप रात को जब अंधेरे में अगर फ्रीज खोलोगे और साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि फ्रीज की जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है. क्यों, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इससे उसका वजन है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा नीचे की तरफ आती है. सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, या गैसेस बोलो तो भी चलेगा कि always hot air rises up and cool air comes on the surface.
ओके, सो यही चीज यहाँ पे है कि हॉट एयर राइजेस, अब वो ऊपर जाएगी, और वो ऊपर जाएगी तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी। वो खाली जगह कौन फिल करेगा? ठंडी हवा जो वाटर सरफेस के तरफ से आती है। फिर ये लैंड के ऊपर आई, लैंड गरम, तो ये भी गरम हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी? वापस ऐसे ऊपर जाएगी। ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे एक जगह क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होगी। वो स्पेस कौन फिल कर देगा? ठंडी हवा जो आ रही है कोई भी वाटर बॉडीज के ऊपर से। सो यू कैन सी दैट एक ऐसी सर्क्यूलेटरी मोशन है वो क्रिएट हो रही है। सो इसी वजह से ये मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से क्या होता है? हवा आती है जिसको हम विंड बोलते हैं। विंड 6th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। विंड मतलब मूविंग ऑफ एयर। सो ये वार्म एयर एंड हॉट एयर एक दूसरे की जगह कवर करते रहते हैं और एक सर्कुलेटरी मोशन क्रिएट करते हैं हवा का, उसको बोलते हैं विंड। एंड इसीलिए जब सुबह में कोई भी बीच या वाटर बॉडीज को आप विजिट करो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल ठंडी हवा महसूस होती है। ओके, क्योंकि ठंडी हवा आ रही है सी से, इसलिए इसका नाम दिया जाता है सी ब्रीज। ये है डे टाइम की बात। अब समझते हैं नाइट टाइम। व्हाट हैपन एट नाइट टाइम? एट नाइट टाइम सबसे जल्दी कौन ठंडा होगा? You will say water. Again, I am saying you are wrong. वो जो एक्सपेरिमेंट किया था रेत एंड पानी का, अब वही एक्सपेरिमेंट करो एंड एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद, जो स्टोव ऑफ करने के बाद 1 सेकेंड के बाद अभी भी थर्मोमीटर उस पर डाल के रखो, उसको निकाल के देखोगे तो यू विल गेट टू नो लैंड इजीली ठंडी हो जाती है। सो लैंड जल्दी गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। इंसान की तरह कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, सेम वे ऐसे ही। So land get cool faster compared to the water. So what will happen? अब गर्म हवा कहाँ पे होगी? On the surface of the water. And ठंडी हवा कहाँ पे होगी? On the surface of the land. तो ये चीज यहाँ पे जो हमने समझी, बस अब इसकी कंप्लीटली उल्टा वर्जन रात के टाइम पे होता है कि भाई यहाँ की हवा वार्म है एंड वार्म एयर राइजेस अप। तो यहाँ पे जो जगह क्रिएट हो गई वो जगह फील होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कूल एयर। फिर ये सरफेस के ऊपर आने की वजह से वार्म होगी, चली गई ऊपर, इसकी जगह फील की ठंडी हवा जो आई लैंड से। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ऐसे टाइप की जो सर्कुलेशन है वो हो रही। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लॉकवाइज एयर की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज एयर की मूवमेंट हो रही है। सो लाइक दिस वे ठंडी हवा है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम लैंड टू सी। सो इसलिए रात के टाइम में क्या होता है? रात के टाइम में जो ठंडी हवा है वो कहाँ से जा रही है? फ्रॉम द लैंड। इसलिए रात के हवा को या रात के पवन को बोलते हैं लैंड ब्रीज। Understand? So like this way you can see the movement inside the gases. I hope you will understand what is convection. Next time I will come with the new topic which is radiation. Till then just stay happy, keep smiling, have a nice day. Bye.